میرے عزیزو، خدا کی محبت جو ہے، خدا کی شفقت جو ہے وہ لازوال ہے، بیونڈ میئر ہے. اس کے لیے کلام کہتا ہے وہ عظیم ہے. اور خدا جو ہے وہ تمام حالات کے اندر آپ کے ساتھ وفادار خدا ہے. آئے خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں. بائبل مقدس میں نوح کی کتاب نکالیے. I just want you to focus on one beautiful verse in the Bible. Lamentation, نوح تیسرا باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کے اوپر ہم غور کریں گے. خدا کی شفقت، خدا کی محبت، خدا کی وفاداری. آج کا پیغام آپ کے لیے بڑا خوبصورت، اور یہ خدا کے وعدے ہیں جن کے اوپر میں اس پورے سال میں منادی کر رہا ہوں. ہمیں خدا کے وعدوں کو یاد کرنا چاہیے. ہاللیلویا. خدا کے وعدے عظیم وعدے ہیں جو لا تبدیل وعدے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ذرا غور سے سنیے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. وہ ہر صبح تازہ ہے اور تیری وفاداری عظیم ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، خدا کی شفقت جو ہے وہ لازوال ہے، اس کو زوال نہیں ہے. وہ فیتھفل گاڈ ہے. کلام کہتا ہے گریٹ اینڈ بیونڈ میجر. اس کو ہم کسی پیمانے میں ناپ نہیں سکتے ہیں. کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے جس میں ہم خدا کی شفقت کو اور اس کی محبت کو اور اس کی وفاداری کو ناپ سکیں، کیونکہ آپ سب کے لیے خدا کی وفاداری آپ کے لیے علیحدہ سے ہے. وہ آپ تمام کو آپ کے اندازے کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضرورتوں کے مطابق ڈیل کرتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ آپ کا آسمانی باپ ہے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو، آج ہم خدا کی شفقت کو ناچیز جانتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خدا کی محبت کو بھی ناچیز جانتے ہیں. خدا کے نزدیک انسان اور حیوان اور اس کی تمام تر مخلوقات جو ہے وہ بہت پیاری ہے. خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا کی محبت جو ہے وہ کئی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر کنڈیشن بھی ہے. خدا کی محبت کے اندر خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا بھی ہمیں جواز نظر آتا ہے. ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی محبت کو اپنے لیے لینا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ یسایہ 33 میں اگر ہم پڑھیں اس کی دوسری آیت میں وہاں لکھا ہے آئے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں. تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات. ہاللیلویا. مصیبت کے وقت ہم سب مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھی، بیمار، پریشان، بدحال، مشکلوں میں، چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہم بہت زیادہ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں ایز اے ریلیجیس کمیونٹی کے طور پہ. ہم جابز کے اوپر ہم تمام طرح کے برے حالات کو بھی فیس کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے روزگار پر، کاروبار پہ ہمارے سامنے ہیٹریڈ ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے. ہمارے سامنے جو ہے کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا کی محبت جو ہے، خدا کی شفقت جو ہے وہ لازوال ہے، بیونڈ میئر ہے. اس کے لیے کلام کہتا ہے وہ عظیم ہے. اور خدا جو ہے وہ تمام حالات کے اندر آپ کے ساتھ وفادار خدا ہے. آپ کے ساتھ وفادار ہے. وہ آپ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. آپ چاہے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہم اپنی بے وفائی کی وجہ سے،
हम अपनी बागी सोच की वजह से, हम अपनी नाफरमानी की वजह से और गुनाह की वजह से खुदा की लानत को अपने ऊपर लेते हैं। कभी आपने ये सोचा है? जब भी खुदा गजबनाक हुआ बनी इसराइल के ऊपर, तो उसकी वजह खुदा के साथ नाफरमानी थी, बगावत थी। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे के अंदर हम देखें तो खुदा की मोहब्बत जो है, उसका रहम जो है, वो बेलौस है, वो मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खरूज की किताब देखें 33वें बाब में लिखा है 19वीं आयत में, उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद का नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूंगा, हालेलुया, मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं उस पर रहम करूंगा, हालेलुया। खुदा बादशाह खुदा है। यहां हम देखते हैं कि एक किंगशिप नजर आती है हमें, एक बादशाहत का किरदार नजर आता है कि वो तमाम मखलूकात का मालिक है। और कलाम कहता है खुदा के बारे में, खुदा फरमाता है कि मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होगा, और जिस पर रहम करना चाहूं उस पर रहम करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का रहम हम सब के लिए मौजूद है। लेकिन कई दफा हम सोचते हैं खुदावन हम बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, बेरोजगार हैं। कई दफा हम बीमारी में से गुजर रहे होते हैं, हम सोचते हैं शायद खुदा हमारे साथ काम नहीं कर रहा। कई दफा हम सोचते हैं कि पिछला हफ्ता मेरा कितना बुरा था। मैं आपको अपनी एग्जांपल देना चाहता हूं। लास्ट वीक वाज वर्स्ट डे, मेरे लिए बड़े वर्स्ट थे, और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं इस संडे मैसेज नहीं दे पाऊंगा। मैं काफी ज्यादा अपने आप को वीक फील कर रहा था। लेकिन जब मैं खुदा के मजबे पे खड़ा हुआ तो खुदा ने मुझे ऐसी अजीब कुव्वत से भर दिया है, हालेलुया, ऐसी अजीम कुव्वत। और रात को जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था तो खुदा ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं। और वही वादा जो खुदा ने मूसा के साथ किया, खुदा ने जब मेरे साथ किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अंदर एक ऐसी हलचल मची, मैं जुम्बिश खाने लगा और मेरे आंसू निकल आए, और मैं दुआ में खुदावंद की हुजूरी में सिजदा रेज हुआ और मैंने कहा खुदावंद तेरी शफकत अजीम है, तेरी शफकत अजीम है। और खुदा ने मुझे ये वादा याद कराया, और खुदा ने कहा कल तूने लोगों को बताना है कि मैं अजीम खुदा हूं, मेरी मोहब्बत और शफकत लाजवाब आपके ऊपर है, हालेलुया। क्योंकि वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर मैं रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। मेरे अजीजों, आए उसके तरस को मांग रहे, हालेलुया। गौर करें, जब 38 बरस के वो बीमार के ऊपर जो हौज के किनारे पे बैठा हुआ, वो अपनी शिफा का इंतजार कर रहा था, और खुदावंद यीशु मसीह उस हौज के ऊपर जाते हैं, और वो शख्स जो है वो उन तमाम बीमारों के दरमियान, वो भी 38 बरस से मफलूज ना चला जा सकता है, ना वो उसकी हालत जो है वो अब करीबुल मर्ग है और वो मरने वाला था, और उसके मुंह के ऊपर किले हैं, शिकवे हैं। यीशु उसके पास जाता है और यीशु उससे पूछता है क्या तू शिफा पाना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? और उसने कहा कि आए रब्बी, आए उस्ताद, देख मैं तो शिफा पाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे पहले ही कोई शख्स उस हौज में उतर जाता है और मैं अरसा दराज से यहां पड़ा हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता। यीशु का सवाल फिर वही है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? लुक एट द कंपैशन ऑफ जीसस। खुदावंद आपसे भी वही हमदर्दी की तवक्को कर रहा है। खुदावंद भी यही चाहता है कि वो आप पर रहम और तरस खाए, और कलाम कहता है जिस पर तरस खाना मंजूर है मैं उस पर तरस खाऊंगा। बाकी बहुत सारे लोग थे वहां पे, बीमारों से भरा हुआ वो हौज था, वहां बरामदे में बहुत सारे बीमार और हर तरह के कमजोर वहां पड़े हुए थे, लेकिन जिस पर तरस खाना मंजूर था उस पर उसने तरस खा लिया, हालेलुया। और वो शख्स जो है वो बीमार है, कमजोर था, और यीशु दोबारा उससे पूछते हैं क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं शिफा पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा उठ, फिर अपनी चारपाई उठा और चल फिर, हालेलुया।
और उसी वक्त, उसी दम उसके टखनों के अंदर, उसके जिस्म के अंदर, उसके पट्टों के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर जोर आना शुरू हो जाता है और वो यकदम उठना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत को जरा गौर से देखिए। हर इंसान उसके तरस का हामिल नहीं है। कई दफा हम सोचते हैं कि खुदावंद हम पर क्यों नहीं तरस खाता। देखिए, खुदा का अपना क्राइटेरिया है, खुदा के अपने असूल हैं। वो बादशाह है, वो बादशाह खुदा है। समटाइम हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावंद तू हम पर रहम कर, और उसके रहम की अपील करते करते हमें साल गुजर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, लुक एट दैट। जरा खुदा के किरदार पर गौर करें। खुदा की नेचर क्या है, खुदा की खसलत क्या है, खुदा की नेचर, खुदा का किरदार, खुदा का रवैया आपके लिए और हर शख्स के लिए अलग से है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और आपकी नेचर, आपकी रवैये, आपके किरदार, आपकी सोच, आपके ईमान, आपकी तालीम और आपका खुदा के साथ मोहब्बत के सारे एलिमेंट्स के ऊपर खुदा के तर्स का पैमाना आपके लिए उभरता है। आप कहेंगे भाई साहब ये तो बड़ा नाइंसाफी। मैं समझता हूं ये खुदावंद है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स था और उसने अपने खेत के अंदर नौकरों को ढूंढना शुरू किया, और वो नौकरों की तलाश में जाता है और थोड़ा ही सफर गुजरता है तो देखता है कि कुछ मजदूर खड़े हैं और उनको कहता है जाओ मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें 2 दिनार दूंगा। वो भागे जाते हैं, खेत में काम करते हैं, और उसके बाद कुछ देर और आगे चलता है, दोपहर हो जाती है, फिर कुछ मजदूर मिलते हैं मोड़ के ऊपर। उन्होंने कहता है कि जाओ मेरे खेत में जाओ, मैं तुम्हें 2 दिनार दूंगा, काम करो। वो भी चले जाते हैं और वो भी 2 दिनार के लिए भागते हैं। और शाम होने से पहले फिर कुछ और मजदूर उसको चौराहे पे खड़े मिलते हैं और उनको भी कहता है जाओ मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें 2 दिनार दूंगा। और जब आखिर होती है, शाम हो जाती है, मजदूरी देने का वक्त आता है, तो वो मालिक जो है वो तमाम नौकरों को, जो सुबह से आए हैं, जो दोपहर के बाद आए हैं, जो शाम से पहले आए हैं, उन सब को 2 दिनार दे देता है। लेकिन सुबह लेकर मेरे आए, मालिक तू साढ़े ना ज्यादती क्यों की थी? मालिक कहता भी मैंने कौन सी ज्यादती की है भाई, मैं सुबह का आया हुआ हूं और ये शाम को आया है, तू इसको भी 2 दे रहा है। मैं सुबह से इतना काम कर रहा हूं, तू इसको भी 2 दे रहा है। मालिक ने कहा भी डील मेरी क्या थी तेरे साथ, 2 दूंगा, गल खत्म। मैंने तो तुझे इससे ज्यादा देने का कोई प्रॉमिस नहीं किया। 2 दिनार देने हैं, मैंने तुझे 2 दिए, तू सुबह से काम कर रहा है, दैट्स इनफ, दैट्स गुड। सो हम खुदा को ये नहीं कह सकते खुदावन वो पहले तो मैं बात चुकी हूं, उसको ज्यादा और मुझे कम क्यों, उसको पहले शिफा और मुझे बाद में क्यों। We cannot say that। खुदा के तरस और रहम को हम अपने पैमाने से नहीं नाप सकते। गौर कीजिए खुदावन क्या कह रहा है, खुदा का जो किरदार क्या है, मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मैं मेहरबान हूंगा, जिस पर रहम करना चाहूं मैं रहम करूंगा, जिस पर तरस खाऊंगा। और मुझे कोई ये नहीं कह सकता आए खुदा तूने ऐसा क्यों किया है। बीमार तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सब बीमार शिफा नहीं पा गए। समटाइम हम अपनी शिफा को कबूल नहीं कर पाते हैं। I don't know why, क्योंकि हमारा रवैया ऐसा है, हमारी नेचर। हम अपनी बरकत को खो देते हैं क्योंकि हम अपने वक्त को जाया करते हैं। समटाइम वी मिस द मार्क, हम उस लम्हे को मिस कर जाते हैं जहां खुदा ने बरकत रखी होती है। हम अपने लालच में उस बरकत को मिस कर जाते हैं। कलाम को गौर से सुनिए क्योंकि आप सब बरकत के लिए यहां पे आए हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम खुदा की उस बरकत के लिए जो अरसा दराज से हम जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, हम उसको मिस कर जाते हैं बिकॉज ऑफ वन थिंग। सिर्फ एक गलती की वजह से हम उसको मिस करते हैं, और इब्लीस हमें उस गलती को करने के लिए उकसाता है ताकि हम खुदा की बरकत को मिस कर जाए। और ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे जोड़ों को बे औलाद देखा है। डॉक्टर ने कहा यार आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके टेस्ट ठीक है, बट औलाद नहीं है। 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, औलाद नहीं है, बिकॉज दे मिस द कंपैशन ऑफ गॉड।
उस लम्हे को मिस कर देते हैं जहां पे खुदा ने उनकी ब्लेसिंग को रखा है. They miss that point. Look at that. बड़ी गहरी बात मैंने आपसे की है. खुदा की मोहब्बत, मां की मानत, कलाम में क्या लिखा है जरा गौर से सुनिए. यशाया चैप्टर 49 वर्स 15 के अंदर क्या लिखा है. क्या यह मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? मां भूल सकती है. कलाम क्या कहता है? और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए. हाँ, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. वो शायद भूल जाए. कलाम क्या कह रहा है? मां भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूलूंगा. आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर लीव यू. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा. यीशु ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं. हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूं. दुनिया में तुम्हारे माँ बाप छोड़ जाए, तुम्हारे बहन भाई छोड़ जाए, तुम्हारे अजीज रिश्तेदार छोड़ जाए, दुनिया में कौन लोग हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो, सब भी छोड़ जाए, अगर तुम मुझ पर ईमान रखती है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. मेरे अजीज, कलाम क्या कहता है? गौर से सुनिए. होशिया की किताब में जरा देखिए खुदा के कलाम में खुदा के किरदार को, जहां खुदा का कंपैशन, खुदा का रहम, खुदा का फजल. कलाम कहता है होशिया 11:8 के अंदर, और वहां लिखा है, आई इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? आई इस्राएल, मैं तुझे क्यों कर तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानत करूं और सुबईम की मानत करूं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजज़न है, मेरी शफकत मौजज़न है. हालेलुया. खुदा उससे बहुत प्यार करता है लेकिन हम खुदा को नाचीज जानते हैं, नाचीज जानते हैं. कभी कभी हमें ऐसी बरकत जल्दी मिल जाए और बिल्कुल फ्री मिल जाए तो फिर हमें उसकी इज्जत नहीं रहती. वही चीज अगर हमें पैसों की मिले और नायाब मिले और बड़ी मेहनत करने के बाद मिले तो सानू बड़ी कदर होती है. जरा गौर करें, वो बच्चे जिन्होंने पढ़ के डिग्री हासिल की और वो बच्चे जिन्होंने एलजी डिग्री ले ली, उन्हें अपनी डिग्री दी पता होता है यार हमने मेहनत करके ली है. दे अर्न देयर क्वालिफिकेशन. कंपैशन, खुदा जो है वो बाप की मानत, उसका रहम देखिए. खुदा यीशु मसीह ने एक एग्जांपल देते हुए कहा कि एक बाप था, उसके 2 बेटे थे और उनमें से छोटा जो है वो बेवफाई करता है और बाप के साथ सरकशी करता है और बागी हो जाता है और कहता है, आए बाप मेरा हिस्सा दे, मैं आज से तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग कर दे क्योंकि मैं तंग आ गया हूं तुझसे. कई दफा हम खुदा से भी तंग आ जाते हैं, खुदा के रहम को नाचीज जानते हैं और फिर हम इधर उधर मुंह मारते रहते हैं. समझ नहीं, इधर उधर मुंह मारना. हम बुतों में खुदा को ढूंढते हैं, हम दुनिया की शहवत में, दुनिया की दौलत में, दुनिया के निजाम में, दुनिया की चीजों में खुदा को ढूंढ और खुदा की मोहब्बत को तलाश करने के लिए कोशिश करते हैं. लेकिन हम देखते हैं कि वही बच्चा जो है जिसको मुसरफ बेटा भी कहा गया, वो ऐसा शख्स साबित हुआ जिसने अपना सब कुछ जो बाप के पास से लेकर गया था, सब कुछ ऐशो इशरत में गंवा दिया. लेकिन बाप की नेचर देखें, बाप का किरदार क्या है. वो बाप जो है वो हर रोज अपने बेटे को देखता है और उसकी राह को देखता रहता है और देखता है कि कब मेरा बेटा वापस लौट आएगा. और वो हर रोज रास्ते के ऊपर निगाह करता है, शायद आज वो आ जाए, शायद आज वो वापस आ जाए, शायद आज वो वापस आ जाए, शायद आज मेरा बेटा मुझे नजर आ जाए. और बेटा जो है वो ऐशो इशरत में अपनी सारी बरकत को जो बाप से लेकर गया उड़ाकर आखिरकार उसको होश आती है और वो कहता है मैं क्या कर रहा हूं. कभी कभी हमें होश आ जाती है और ये भी खुदा का शुक्र है कि हमें होश आ जाती है. ऐसे ही है, अगर ना होश आए तो ये एक बड़ी भयानक हालत है. एक रूहानी शख्स की भयानक हालत उस वक्त होती है जब उसको गुनाह का भी पता नहीं चलता कि मैं गुनाह कर रहा हूं. तो ऐसे खादमीन भी हैं, वो गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर और चर्चेस के अंदर, दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ सिन. वो अपनी जिंदगी में हर तरह का गुनाह रखते हैं. तो
تو بھی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. کوئی شخص ان کو سمجھانے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ہی سمجھائے گا وہ کہے گا بھائی صاحب ساڑھے تے والوں پی جان گے, سانوں تے مارن گے کٹن گے, کیونکہ وہ تو خدا عالم ہے, ان کو کون سمجھائے, خدا ہی سمجھا سکتا ہے. پھر جدو ڈنڈے آتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کی ہویا ساڈے نال. خدا کی شفقت, خدا کی محبت, خدا کے جلال, خدا کی حضوری, خدا کی جو محبت ہے ہم اس کو ناچیز جانتے ہیں میرے عزیزوں. آخر کار ہم دیکھتے ہیں خدا کی محبت میں کیا ہے. خدا اپنی باہیں پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہا ہے میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے, میری شفقت معجزن ہے. آج بھی وہ آپ کے لیے دیکھ رہا ہے, آج بھی وہ آپ کو دور سے دیکھ رہے. When you will come back. کئی دفعہ ہم خدا کی محبت کو نافرمانی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں, بڑی طرح کی نافرمانی کی قسمیں بہت زیادہ ہیں. کئی دفعہ ہم کلام نہ پڑھ کے, دعا نہ کر کے اور چرچ نہ جا کے یہ بھی نافرمانی کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم خدا کی حضوری میں نہ بیٹھ کر بھی دعا نہیں کر کے پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم ان چیزوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جہاں پہ تو بہت ہی خطرناک کام ہم کر جاتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ استشنا کی کتاب نکالیے 13:17 کے اندر کیا لکھا ہے. استشنا 13:17 میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بڑے حکم دیے کہ بھی ایسا ایسے کرنا اور ایسے ایسے نہ کرنا. اگر ایسے ایسے کرو گے تو میری برکت آئے گی, اگر یہ کام کرو گے تو پھر برکت نہیں آئے گی. کلام کہتا ہے اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے تاکہ خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے, اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے. تو کئی دفعہ ہم ان کاموں کو کرتے ہیں جو کام خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے, اور کئی دفعہ ہم اپنی درینہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا سے دور چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لے بھی یہ دروازہ بند کر دے, اے کھول دے, کیونکہ ہمیں اس دروازے سے توقع ہوتی ہے. What you are doing, آپ ان تمام چیزوں کو کر رہے ہیں جو کہ خدا سے مماثلت نہیں رکھتی, کلام کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ میل ہی نہیں ہے. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ساتھ تیرے ہاتھ میں, تو پھر خدا کا قہر آپ کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے. خدا کے قہر کو دیکھیے, خدا کا قہر ایک دم سے نہیں آ جاتا, وہ گریجولی آپ کے گھروں کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے. جو آپ خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ پیری فکری, جادوگری, حرام کاری, نشے میں اور ابلیس کے ساتھ جوڑ توڑ شروع کرتے ہیں, 50-50 کرتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, ابلیس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ابلیس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, تبھی خدا کا قہر آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور we stand under the curse of God. ہم کہتے نہیں خداوند تو بہت رحیم ہے, تو بہت رحم کرنے والا خدا ہے. خدا یقیناً آپ کے اوپر رحم کرتا ہے, لیکن خدا اپنے اصولوں کو تباہ نہیں کرتا ہے. خدا کے اصول ہیں, کلام میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو ہلاک ہوگی, مرے گی. یہ خدا کا ایک یونیورسل لا ہے. اب اس یونیورسل لا کو ہم یہ نہیں کہتے خداوند گناہ نہیں رکھ لے, تھوڑا جا کوئی گل نہیں یار, تھوڑا جا تمہیں کرنا ہی ہے, چل کوئی گل نہیں خداوندا پلیز مہربانی تیری. خدا کہتے چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, تھوڑا جا گناہ کر لے, تھوڑا جا خدا وال بھی آ جا, میں تے تینوں بہت پیار کرنا. کیا ایسا ہے خدا؟ مجھے بتائیں, کیا خدا ایسا ہے؟ کیا خدا کی نیچر ایسی ہے کہ وہ گناہ کو آپ کے اندر دیکھے؟ اصل میں خدا جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے, اور وہ آپ کو نکلنے کی راہ دیتا ہے. وہ آپ کے اندر سے گناہ دیکھ نہیں سکتا, وہ گناہ کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے, اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ تمام آپ کو اصول دے رہا ہے, ضابطے دے رہا ہے, آپ کو وہ ٹولز دے رہا ہے جہاں جہاں سے آپ استعمال کر کے گناہ میں سے نکل سکتے ہیں, آپ بدکاری میں سے نکل سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے رحم اور اس کے جلال کو کیسے کلیم کرتے ہیں؟ کیسے؟ بائبل کا حوالہ آج جو ہم نے پڑھا وہ یہی ہے, یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے ہیں, نہیں تو ساڑھے کام تو ایسے ہی سن کیسی فنا ہو جاندے, کام ساڑھے برے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں لوگ چرچز کے بعد ان کے رویے وہی ہیں, گھروں میں جاتے ہی ان کے نعرے بدل جاتے ہیں. پہلے وہ ہاللیلویا کے نعرے لگا رہے تھے,
ਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ बदल गए ने, उनकी अखलाकियात में भी तब्दीली आ गई है, उनकी रूहानियत में भी तब्दीली आ गई है, उनकी जुबान में भी खातर खा तब्दीली आ गई है। और फौरन जो ही चर्च की दहलीज से पांव बाहर रखा नहीं, भी लड़ाई शुरू हो गई। फिर तो पॉज की सी जरा थोड़ा जिहा चर्च की वजह ना, लेकिन गल अपनी उत्थे ही रखी। सो दिस इज नॉट, ये खुदा के रहम के लिए हम कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो नाफरमान लोग हैं। नाफरमान लोगों के लिए खुदा का कहर ही है, सिर्फ और सिर्फ कहर। जो लोग नाफरमान हैं, बागी हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा के साथ अबलीस और उसके कामों को शामिल करते हैं, मिलावट करते हैं और अपनी रूहानी इकदार के अंदर, वैल्यूज के अंदर अबलीस को भी शामिल कर लेते हैं। दे आर अंडर द कर्स ऑफ गॉड, अंडर द कर्स ऑफ गॉड। खुदा की कोई बरकत उनके कामों में नहीं है, और जो पैसा भी वो कमा रहे हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। आई डोंट नो, आप कहेंगे खुदावन तू रहम कर, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का रहम, खुदा का कंपैशन वो आप लोगों के लिए है। कंपैशन इज रूटेड इन हिज कॉवेनेंट, उसके अहद के अंदर है। और वो अहद जो है वो यीशु के खून के साथ उसने लिखा है, अपने बेटे यीशु के लहू से वो अहद लिखा गया है। और वो अहद क्या है? यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो बाप को देखेगा। हालेलुया, वो बाप की बादशाहत में जाएगा। ये है वो अहद। और कलाम में अगर आप पुराने अहद में देखें, दूसरा सलातीन 13:23 में लिखा है, और खुदावन उन पर मेहरबान हुआ और उसने उन पर तरस खाया, और उस अहद के सबब से जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब से बांधा था, उनकी तरफ इत्तेफाक की और ना चाहा कि उनको हलाक करे, और अब भी उनको अपने हुजूर से दूर ना किया। मेरे अजीजों, आज अगर हम बच जाते हैं गुनाहों के बावजूद, खुदा का रहम हम पर ठहरता है, तो उसका एक बड़ा रीजन यह है यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसकी वजह यीशु है। और आज भी यीशु अपना लहू जो है वो आपके लिए आसमान पर बाप के सामने पेश करता है और कहता है, अरे बाप, एक बार इसको फिर माफ कर दे, एक बार फिर इसको माफ कर दे। और हर बार जब हम गुनाह करते हैं, फिर यीशु मसीह अपने खून का प्याला बाप के पास लेकर जाता और कहता है, अरे बाप, एक बार फिर इसको रहम कर, अपना रहम कर। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिलसिला ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि एक वक्त आने वाला है जब खुदा का रहम खुदा के गजब में बदल जाएगा, खुदा के कहरे शदीद में बदल जाएगा, और उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होगा। खुदावन यीशु मसीह भी अपने कहरे शदीद में उनसे कहेगा, आए नाफरमानो, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा बखरा, तुम्हारी जगह आग और गंधक से जलने वाली झील है, जहां अबदी रोना है, अबदी जो है वो मौत है, जहां हमेशा की मौत, हमेशा का अजाब मेरे अजीजों उन लोगों के लिए है जो मुसलसल खुदा की नाफरमानी करते रहे। सो हमें क्या करना है? हमें खुदावंद अपने परों में छुपा लेता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है ज़बूर 91:4 के अंदर, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। सो मेरे अजीजों, खुदा की रहम को, उसकी शफकत को नाचीज ना जाने, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है और वो सुबह को ताजा है। जो ही हम सुबह उठते हैं, हमें खुदा से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए। हमें जॉब से जाने से पहले, हमें काम करने से पहले, हमें बेड के पर से उठ के फौरन हमारे मुंह के अंदर 2 लफ्ज जरूर होने चाहिए, खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक नई सुबह दी है। शायद बहुत सारे लोग ये करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, शायद वो बहुत मसरूफ होते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें जॉब पे जाना होता है, भागन दौड़ लगा होता है, सुबह सुबह नाश्ता, ये वो चाह उधर रोला। लेकिन वी मिस्ड आवर ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ नॉट कनेक्टिंग विद गॉड इन द मॉर्निंग। जरा इसकी ब्लेसिंग को तजर्बा करके देखें। सुबह सुबह रोले दे विच ना 5 मिनट खुदा नूं दे दिया करो, सारा रोला खत्म करो यार, आओ खुदावंद दी इबादत के। हालेलुया। आए चंद
चंद मिनट सब मिलके, अगर नहीं सब मिलके तुसी इकल्ले कर सकते, कनेक्ट विद द करंट, ताकि आपका जो रूहानी चार्जर है आपकी लाइफ चार्ज हो जाए। हालेलुया। और आप जब सारा दिन गुजारेंगे तो फिर खुदा का रहम, खुदा की शफकत लाजवाल होगी, क्योंकि वो हर रोज आपके लिए ताजा दम हो जाता है। हालेलुया। और आपको भी ताजा करता है, क्योंकि वो कभी मर जाता ही नहीं है, वो कभी फना नहीं होता, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा चार्ज रहता है। वो कुदरत का खुदा है, वो जलाल का खुदा है, वो रहम का खुदा है, और वो उन तमाम लोगों को जानता है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा का तरस आपके लिए मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह के तरस को देखे, उसने आपके लिए अपनी जान का नजराना दिया है, और वो चाहता है कि आप भी अपनी जिंदगी में उसके लिए कुर्बानी करें, अपने वक्त को डेडिकेट करें, एवरी संडे चर्च के साथ रफाकत करें, हर रोज दुआ में बैठे, अपने बच्चों को लेकर बैठे, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आप दुआ की एक रूटीन बनाएं, अपने घरों के अंदर दुआ के सिलसिले को बढ़ाएं, ताकि खुदा का गजब आपके घरों के ऊपर, क्योंकि कहर शदीद जो है वो उसी वक्त आता है जब हम बागी हो जाते हैं, जब हम खुदा के सामने इब्लीस को ज्यादा जलाल देना शुरू कर देते हैं, तो फिर खुदा का गजब कर देते हो। इसलिए मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े हो जाए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और कलाम में जो लिखा है उस हवाले को याद करते हुए कहे, खुदावंद तेरी शफकत लाजवाल है।